स्टूडेंट की थोड़ा टाइम लगता है। जी मैम, जी मैम। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं मोनिका, तो तो हो बच्चे साथ सकता साथ है जुड़ते रहेंगे मैम। वी कैन। 5-7 मिनट लग जाएं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं मुझे लगता है। हम्म। जी मैम, ठीक। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय। मैडम वीरेंद्र मैम ही शायद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। कोमल मैम, वीरेंद्र मैम, विनय सर, ये सब जुड़ चुके हैं मैम। प्रीति मैम भी जुड़े हुए हैं और हमारे और भी सहभागी साथ साथ जुड़ रहे हैं। करें मैम, स्टार्ट करें। ओके मैम। सुप्रभात प्लीज मैम, प्लीज स्टार्ट करते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय परिसर के सभी सहभागीगण और परम आदरणीय हमारी आज की मुख्य वक्ता मिस मोनिका गर्ग मैम और प्यारी छात्राओं, मैं डॉक्टर श्रेष्ठा आप सबका इस वर्चुअल मंच पर गृह विज्ञान विभाग की तरफ से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ एक वेबिनार के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका मुख्य विषय है योगा एंड डाइट फॉर होलिस्टिक हेल्थ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल मैम को, डॉक्टर मीनाक्षी मैम को, कि वो आए और हमारे अतिथि का स्वागत करें। डॉक्टर मीनाक्षी मैम। Good morning, everyone. Worthy speaker of the day, Dr. Monica Garg, co-founder and head nutrition at M Health, esteemed colleagues, and dear students. Again, a very good morning to all. First of all, I would like to welcome our worthy speaker, Dr. Monica, who is passionate nutritionist, educationist, and blogger with 23 years of experience. I express my gratitude, you ma'am, for accepting our invitation to address our budding daughters on such a relevant topic. As we all know that diet and yoga are two key essential for maintaining our health and well-being. Using both discipline together, we can maximize our health benefit, especially when we are passing through the difficult times like pandemic. Not only are these effective in preventing excessive weight gain or in maintaining weight loss, but healthier lifestyles are also associated with improved sleep or mood. So it is the right time to deliberate on such a relevant topic. For this, I offer my special regard to Dr. Shrestha for organizing a webinar on such a relevant topic for the welfare of the students. I wish this webinar enlighten us all and provide us insight regarding the different issues of diet and yoga. I again welcome you, ma'am, in this webinar. Without taking much time, I request Dr. Shrestha for further proceeding. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Shrestha ma'am, you are requested Thank you for so much, further ma'am. proceeding. Ji ma'am. Now let me brief you the main objective of this webinar. Many of us believe that yoga refers to some specific postures, often many very complicated ones. But the concept of yoga involves much more than some exercises. Actually, it is a philosophy, a practice, and a discipline to achieve a harmony and balance between the body, mind, and soul. Some people often wonder that isn't it enough just to practice the yoga asanas, or do I have to regulate my diet? So the answer for those people is yes. In fact, eating the right kind of food is an essential part of living a yogic life. In itself, practicing yoga asanas is one of the most beneficial regime, but when complemented with healthy food habits, it really creates wonders. एक आयुर्वेदिक proverb है, when diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is right, medicine is of no use. So considering these facts, this webinar is organized for you all. Now, I would like to invite our today's speaker, Miss Monica Garg ma'am. But before inviting, मैं आप सबको हमारे आज के अतिथि से उनका परिचय करवाना चाहूंगी आप सबको। मिस मोनिका गर्ग,
She is the co-founder and head of nutrition at M Health, which is a platform for digital enablement and skill upgradation of dietitians and nutritionists. मैम की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो शी इज गोल्ड मेडलिस्ट इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स एंड यूनिवर्सिटी टॉपर इन एमएससी. She had served as lecturer for total 7 years in different colleges of Faridabad. She is a senior speaker in panel of an NGO Sahayata and also in a panel of Foods and Nutrition Zone of Child and Women Welfare Ministry in Delhi and Faridabad since last 17 years. मैम ने बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स. और जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने बताया, शी इज़ अ पैशनेट न्यूट्रिशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड अ ब्लॉगर विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 23 ईयर्स. और इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं मैम को पिछले 13-14 सालों से जानती हूं. शी इज़ अ ग्रेट कुक, शी इज़ एन ऑसम काउंसलर और बहुत क्रिएटिव है मैम. मैम बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी करते हैं. इन्होंने अपनी एग्जीबिशन भी कंडक्ट की कुछ टाइम पहले. और मुझे नहीं लगता एज अ होम साइंटिस्ट कोई फील्ड ऐसा होगा जिससे मैम ने नहीं आजमाया हो. सो शी इज़ रियली मल्टी टैलेंटेड. और अगर मैं कहूँ कि शी इज़ एन एपिटोम ऑफ नॉलेज, सो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. सो और अबव ऑल शी इज़ अ ग्रेट टीचर, अ वेरी गुड फ्रेंड और अ ब्रिलियंट मदर. शी इज़ अ मदर ऑफ 2 IITians. मैम का एक बेटा है आयुष और एक बेटी है दिव्या और दोनों ही IIT में पढ़ते हैं. वाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज मुझे लगता है कि हम सबकी एज अ फीमेल एक अपनी आइडेंटिटी होती है सोसाइटी में और एक अपनी पोजीशन होती है, अपनी अचीवमेंट्स होती हैं. बट जब हमारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी हमारे साथ जुड़ती है तो कहीं ना कहीं एक फीमेल की, एक मदर की अचीवमेंट्स, उपलब्धियां दुगनी हो जाती हैं. क्योंकि उन बच्चों की सक्सेस के पीछे एक मदर का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत सारी मेहनत होती है और बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं जो कि शायद एक आम व्यूअर को शायद ना दिखते हों. बट मैंने मैम को बहुत करीब से जाना है. शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी काइंड और इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी शी इज सो डाउन टू अर्थ. सो माफ़ी चाहूँगी मैम, आपकी सारी अचीवमेंट्स को मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से कवर नहीं कर पाऊँगी. But we would love to hear from you, ma'am. Now, अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देते हुए अपने आज की मुख्य अतिथि मिस मोनिका गर्ग मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार हमारे बच्चों के साथ साझा करें. मिस मोनिका गर्ग मैम, प्लीज. Thank you so much, first of all, Principal Ma'am, for giving me this opportunity, and then to dear Sheshtha for this beautiful and splendid introduction. I never knew that she is she was my student and was always close to my heart, but I never knew that she was मुझे इतना ज़्यादा बारीकी से उसने मुझे जो देखा है. That is really I'm very thankful to you, Shrestha, for that. And thank you so much for inviting me for this. Let's start now, not to waste so much time. I am emotional now after those words by Shrestha. Anyways, let's start. I hope my screen is visible to all. जी मैम, विजिबल है. Okay. So as मैम and Shrestha told that आज हम योगा के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ रेलेवेंट जो मैम ने ऑलरेडी बताया, श्रेष्ठा ने बताया कि योगा और डाइट जो दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज है. ये नहीं कि सुबह उठकर हमने 5 बजे उठकर योगा कर लिया और सोचा कि चलो अब कुछ भी खाओ, मस्ती करो. तो इट्स नॉट लाइक दैट. योगा एक एक्सरसाइज नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज leading you towards holistic health. So what is this holistic health? Why we are talking about holistic health every day? तो holistic health क्या है कि एक अप्रोच टू लाइफ है कि हम अपनी लाइफ को कैसे अप्रोच कर रहे हैं. इट इज अ कनेक्शन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. तो होलिस्टिक हेल्थ में वी आर गोइंग टू अचीव आवर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ. राइट. अगर हम हेल्दी हैं, ओनली फिजिकली हेल्दी, एंड वी आर नॉट इमोशनली हेल्दी, देन अगेन वी आर सिक.
all time we are stressed and thinking about our problems, then again we are not actually healthy, and that also leads to physical health में कुछ ना कुछ इश्यू जरूर आएगा अगर आपके इस बॉडी में स्ट्रेस है तो. सिमिलरली स्पिरिचुअल हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है, यू हैव नॉट अचीव कि आपका बॉडी और माइंड का एक सार नहीं होते हैं तब तक आप फिजिकली हेल्दी नहीं होते हैं. और सिमिलरली सोशल हेल्थ की बात क्यों करते हैं? सोशल हेल्थ इज अ काइंड ऑफ हेल्थ लाइक कि आप दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे से मिलते हैं तो उसके बारे में क्या पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं. कई बार हम बात भी नहीं करते तो भी हम दूसरे के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव सोचते रहते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स इम्पैक्ट आवर हेल्थ समहाउ, फिजिकल मेंटल एवरी काइंड ऑफ हेल्थ. तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट कि हमें वो सारी अपनी हेल्थ को कैसे होलिस्टिकली अपनी प्रॉपर वेलबींग करनी है. राइट, होलिस्टिक वेलबींग कैसे अचीव कर सकते हैं? बात तो कर रहे हैं होलिस्टिक अचीव कैसे करना है इसको. तो सबसे पहले अगर आपकी माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट वो सब आपके एक लय में, एक तार में बन जाएंगे तो आपको होलिस्टिक वेलबींग आपकी हो जाएगी. अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कि कहना तो बहुत आसान है कि ये सब कुछ आप बांध लो, सबको अपने वश में कर लो और देन यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ, बट इट्स नॉट दैट इजी और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई मस्ट से. सबसे पहले आपको क्या करना है उसके लिए? यू नीड टू slow down in the sense like everybody is running after one thing or the other. You need to slow down, keep calm करना है तो you can do it by keeping calm as well. ये नहीं कि सारा टाइम स्ट्रेस में रहकर ही करना है. ओके, and be positive towards everything happens for a reason. Even this corona is going to teach you so many positive things. So everything has a reason. सबका अपना अपना एक रीजन है. You need to understand that. कोई भी स्ट्रेस का टाइम हो, कुछ भी, चाहे एग्जाम टाइम है, चाहे हमारा कुछ असाइनमेंट टाइम है, तो टेक इट इजी, गिव इट अ टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. अनप्लग not only from your mobile phone, unplug from all the emotions, bad emotions, stress levels, bad memories, okay, and start enjoying life. Have fun often. पूरे दिन में आप ये देखो आपने पूरे दिन में कितने मिनट एंजॉय किया है, कितने मिनट आपने अपने बारे में सोचा है. ठीक है, रिलैक्स करो, ब्रीथ करो, डीप ब्रीथिंग करो, गो आउटसाइड, पार्क में जाओ, छत पे जाओ, कहीं ना कहीं आप टेरेस पर जाओ या बालकनी में जाओ, आसपास के अपने गली में घूमो या फ्रेंड्स से मिलो, मेडिटेट करो एंड कीप स्माइलिंग. दैट इज द secret to all the things. If you will keep smiling, everybody will smile around you. फिजिकल वेलबींग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फिजिकल वेलबींग का नॉर्मली हमें क्या होता है कि अगर हमें बोला जाए कि वॉक करनी है या चलो योगा ही करना है या जिम जाना है या साइकिलिंग करनी है, तो हमको लगता है कि नहीं होगा, कल से करूँगा, परसों से करूँगा, आज नहीं, या फिर मुझसे नहीं होगा. मतलब आप लोग तो बच्चे हो तो इसलिए ऐसा नहीं कहते होंगे कि मुझसे नहीं होगा, बट आफ्टर 30-40 लोग ये कहने लग जाते हैं मेरे घुटने में दर्द है, या मेरे से चला ही नहीं जाएगा, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं उतरा जाएगा, मुझसे कहाँ इतना चला जाएगा, मैं तो थक जाऊंगी या थक जाऊंगा. तो वो आई कांट डू इट को आपको आई कैन डू इट में चेंज करना है. हाउ यू कैन डू दैट? बाय सेटिंग अ routine of morning walk. It can be started from 10 minutes, then 15, then 30 minutes, then aerobics, going to gym or yoga. Anything जो आपको easy लगती है you can do, but with self commitment. जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि I can't do it या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, I can't make it, then it won't be possible. You need to make it possible. And mental health की बात करें तो meditation करना. मेडिटेशन आई वोंट से कि सारा टाइम हम बैठकर, और मेडिटेशन इज नॉट ओनली कि आप बैठकर ही करो बिल्कुल पीसफुली, बट एनीथिंग यू एंजॉय, लाइक इफ यू एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, यू एंजॉय डूइंग डांस, यू एंजॉय डूइंग पेंटिंग, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन बेसिकली क्या है कि आपको जब बाहर का स्ट्रेस आपसे दूर हो जाए, तो वो कब होता है? जब आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं या सीरियसली वाला मेडिटेट ही कर रहे हैं, या फिर अगर पेंटिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, उसमें आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं और उसी में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. यू कैन गो फॉर दैट.
देन इमोशनल हेल्थ, ये सबका आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो वाई इवन देन क्यों हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छा नहीं है, क्यों हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। कभी भी हम परेशान या दुखी तभी रहते हैं जब हम अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, या फिर टाइम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं या उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। क्या होता है जब आप दुखी होते हो, उदास होते हो, एक कमरे में बंद हो जाते हो, चुप हो जाते हो, बात नहीं करते हो। इट्स बेटर टू स्पीक अप, टू स्पेंड टाइम। अगर आपको मान लो आप परेशान और अगर आप कोई मूवी देखने लग जाओ तो यू विल फील बेटर, राइट। सिमिलरली अगर आप अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर लो या मिलने चले जाओ या वो मिलने आ जाए, यू विल फील बेटर एंड आपको वो बात भी भूल जाएगी जिसकी वजह से आप परेशान थे। तो जरूर ऐसा टाइम निकालो कि दोस्तों से बात करो, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उनके साथ मिलो, बातें करो, फोन पर बात करो, चैट करो, जूम पर बात करो या मिलने जा सकते हो। तो दैट ऑल्सो विल रियली हेल्प यू टू मेंटेन इमोशनल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल हेल्थ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय डेवलपिंग अ हॉबी। हॉबी और इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी फोटोग्राफी, राइटिंग, ब्लॉगिंग, म्यूजिक लिसनिंग, हाइकिंग, एनी गेम प्लेइंग, एनीथिंग। बट कीप इन माइंड कि आपकी जो हॉबी हो वो 3 हॉबी आप अपनी लाइफ में जरूर डेवलप करें, जो कि ऐसी हॉबी जिसको कि आप मतलब सारा कुछ भूल कर आप वो काम करने में मतलब आपको इंटरेस्ट हो और आपको बहुत अच्छा लगे वो करना। तो सबसे पहले जो भी हॉबी हो, 3 हॉबी हो जिनमें से एक ऐसी हो जिससे कि यू आर एबल टू अर्न, जिससे आपको कुछ मनी मिले। देन दूसरी जिससे कि आप शेप में रह सको। थर्ड आप क्रिएटिविटी शो कर सको, राइट। तो फॉर मी टू मेक मनी इट कैन बी एनीथिंग, लाइक it can be writing, it can be blogging, it can be making painting. To keep you in shape, it can be yoga, it can be aerobics, it can be dancing. Or want to be creative, again any craft work you can do, any activity you can do to maintain creativity. Now what is yoga? Yoga is to maintain mind body और spirit के बीच में जो आपका connection है, that is the aim of yoga. योगा से आपको सब पीस ऑफ माइंड मिलता है, बॉडी आपकी काम होती है एंड यू अचीव स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हम बात करें कि हमें क्यों चाहिए योगा। योगा की बात बहुत कर रहे हैं कि योगा करना चाहिए, पर करना क्यों चाहिए? क्योंकि इससे हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हीलिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करने की हमारे अंदर स्किल्स आती हैं। कैसे आती हैं वो? स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है ना कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है डीप विद इन, है ना। आप जब अपने बारे में जानने लगते हैं, अपने हार्ट और माइंड का आपका रिलेशन बनता है आपकी सोल के साथ, देन you start learning about yourself, you start accepting things around you। तो आप वर्ल्ड को, पीपल को, सबको आप कोरिलेट कर लेते हो कि जो भी हो रहा है उसका क्या रीजन है और हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, अगर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। तो थ्रू योगा यू लर्न टू नो योरसेल्फ, स्पीक अबाउट योरसेल्फ, ओके। तो योगा इज फॉर हेल्थ। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स, हार्मोन्स और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज जो है स्लो डाउन होने लग जाती हैं। तो उन सब एक्टिविटीज को वापस से रीजनरेट करना ही योगा है। तो हम कैसे फिजिकल हेल्थ अचीव कर सकते हैं थ्रू योगा? योगा का क्या मीनिंग है? जैसे आप शुरू में पढ़ते हैं योग या जोड़ या ऐड। योगा इज एडिशन। Yoga means to join. It is the union of body, mind and soul. ठीक है, तो इसीलिए इसको स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी कहा जाता है। योगा जो है इट यूजेस बॉडी एक तरह से माध्यम है टू डिसिप्लिन द माइंड एंड टू रीच द सोल। और ये अगर आप एक टाइप का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन यानी फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन,
क्योंकि जब कोई आप आसन कर रहे होते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेशन के साथ होल्ड करना होता है। ये ऐसा नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हैं और आसन कर रहे हैं तो इट वॉन्ट वर्क। तो इसीलिए इट्स मस्ट कि आप उसमें पूरा इन्वॉल्व होकर पूरा डिसिप्लिन के साथ आप उसको करते हैं तो आपकी बॉडी भी डिसिप्लिन हो जाती है। अब योगा से और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें? योगा मेक्स अस अ ट्रबल शूटर। हाउ? क्योंकि नॉर्मली हम क्या होते हैं, वी आर नॉट अ वॉरियर, वी आर अ वॉरियर। सारा टाइम हम टेंशन करके रखते हैं किसी ना किसी बात की, ठीक है। बट योगा जो है आपकी जब पूरी माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन बना देता है, then you are not a warrior, you are a warrior. You learn how you can fight with the situations, how you can adjust with the situations, okay. And then it improves relationships. How? Because you are more centered. आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहते हो अपने आप जब सुबह अगर आप 1 घंटा योगा कर लेते हो, यू रिमेन पीसफुल थ्रू आउट द डे। पूरा दिन आप पीसफुल रहते हो और तब आप जब खुद पीसफुल रहोगे तो आप अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी कंपैशनेट होकर ही बात करोगे और यू वोंट गेट इरिटेटेड ऑन स्मॉल मैटर्स। योगा से आपकी शैडो क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती हैं कि है, ठीक है। यू बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो हु एम आई, वो आप योगा करते हैं तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर ओन क्वालिटीज। और योगा के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? उससे आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, डाइजेशन पावर अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हार्ट डिजीज नहीं होती है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और पीस ऑफ माइंड बढ़ जाता है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है योगा हमारी बॉडी का? ब्रेन की फंक्शनिंग, क्योंकि जब हम इसमें मेडिटेशन करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर होल्ड करने की प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, हार्ट डिजीजेस कम होती हैं, वेट आपका कम होता है, एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। योगा एंड डाइट की बात जैसे मैम ने भी बोला, मीनाक्षी मैम ने और श्रेष्ठा ने भी, कि योगा और डाइट साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली योगा किया और हम डाइट कुछ भी खाएं। कैसे? क्यों? तो जैसा धन वैसा अन्न। आप में से कौन एग्री करता है इस बात को कि जैसा हमारे पास धन होता है वैसे ही हम अन्न खरीदते हैं, राइट? और जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा और जैसा मन होगा तो वैसा ही धन होगा। इसलिए चाहिए हमें कि हम सात्विक धन कमाएं, यानी सात्विक खाना खाएं और हेल्दी हो जाएं। योगा डाइट है क्या? योगा डाइट ऐसा कोई डाइट नहीं है कि कोई फिक्स डाइट है या कुछ स्ट्रिक्ट डाइट है कि आपको ये खाना है ये नहीं खाना है, ना ही कोई फिक्स कोई कैलोरीज है इसमें। तो इसमें आपको ऐसी डाइट खानी है कि आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए, आपके इमोशनली आप हेल्दी हो। तो उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? सबसे पहले जंक फूड नहीं खाना है। कौन लोग हैं जिनको जंक फूड अच्छा ही लगता होगा? सबको ही अच्छा लगता है एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा तो हर किसी को अच्छा लगता है, बट इज इट दैट इम्पोर्टेंट टू रिस्क योर लाइफ फॉर दैट? तो जंक फूड आपको नहीं खाना है। जंक फूड में आपको बताइए सारे फास्ट फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो वो आपको नहीं खाने हैं। खाना क्या है? कैसे आप राइट डाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल योगा हमें अहिंसा सिखाता है। अहिंसा यानी कि किसी को बिना हार्म किए, बिना वायलेंस के आप खाना खाएं। तो जो आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं दैट इज एक्चुअली यू आर हार्मिंग एनिमल एंड दैट इज नॉट योगिक, योगिक नहीं है, उसको आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो नॉनवेज है उसके अंदर या फिर कोई भी एनिमल है उसको जब हम किल करके कुछ बनाते हैं तो दैट गिव्स अस बैड प्राण, जिसके बारे में अभी मैं बात करती हूँ आगे। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब कि जो कि फ्रेश है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रेन्स,
लेग्यूम्स, स्पाइसेस, जो भी माइल्ड हो, लाइट हो और हमारे को जो है अच्छा फील कराए। तो आप भी खुद फील करके देखिए, सोचिए देखिए, जब आप वो सिंपल घर का बना खाना खाते हैं तब आप कैसा फील करते हैं, और जब आप बाहर का खाना खाते हैं तीखा मिर्ची वाला तब कैसा फील करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सात्विक फूड यानी कि घर का फ्रेश खाना खाने से आपका माइंड ज़्यादा स्टेबल रहता है, ज़्यादा शांत रहता है। फिर बात करते हैं अगर हम प्राण की, प्राण यानी लाइफ, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी प्राण है, लाइफ है, और उसी के लिए हम खाना खाते हैं, राइट। और आप सबको ही पता है कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है ना, प्लांट्स में लाइफ, तभी वो बड़े होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स या ट्रीज से ग्रो किया हुआ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे प्राण जाते हैं, राइट। एकदम आपके अंदर लाइफ जा रही है, यू आर एडिंग लाइफ टू योरसेल्फ। तो जिसमें कि आप जितना कम पकाया हुआ खाना, रॉ फूड यानी कि वेजिटेबल्स है, सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो जितना रॉ जो चीज़ें खाते हैं तो वो ज़्यादा आपके अंदर ऐड ऑन करते रहते हैं प्राण, मतलब कि लाइफ और ऐड होती चली जाती है। जबकि अगर आप एनिमल मीट खाते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्राण निकाल कर फिर उस चीज़ को खा रहे हैं। तो दैट में कंटेन स्ट्रेस हार्मोन्स। थिंक ऑफ दैट एनिमल जिसको कि मतलब पता है कि उसे मारा जाने वाला है, तो उसके अंदर कितना स्ट्रेस होगा, और उसको पता नहीं कितने हार्मोन्स और कितने मेडिसिन दे देकर उसको बड़ा किया जाता है ताकि दे आर एबल टू गेट गुड मीट आउट ऑफ इट। तो वो सब जो है दैट इज नॉट ह्यूमन, और वो हमें अच्छे वाले प्राण, मतलब हमें प्राण नहीं दे रहा, दैट इज नॉट गिविंग अस लाइफ, ठीक है। तो अगर फिर भी इफ यू वांट टू ईट, गेट इट फ्रॉम गुड सोर्स, मतलब सोर्स अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ हो, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह नहीं हो, कोई मेडिसिन नहीं खिलाई गई हो, तो वो वाला आपको मीट खाना चाहिए। योगा डाइट में जब हम बात करते हैं तो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं सात्विक फूड की। सात्विक फूड वो खाना होता है जो कि प्योरेस्ट भोजन है, आपका खाना है, जो कि हम घर पर बनाया हुआ पीसफुल माइंड से। जब भी जो खाना बनाया जाता है तो कौन खाना बना रहा है, उसकी मान लो जैसे मम्मी बना रही है खाना, तो वो कितने उसको लाड से, प्यार से और बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान देकर आपके लिए बना रही है, ठीक है। तो उस खाने में वो वाले इमोशंस भी आपके लिए, हेल्थ को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर अच्छे प्राण डालने के लिए, टू ऐड ऑन योर प्राण, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और सात्विक में हमारा क्या आता है, सब प्लांट ग्रोन फूड लाइक, और या फिर एनिमल से जो हमें मिल्क वगैरह मिलता है, दैट वो सब हम इसमें काउंट करते हैं, जिसमें कि आपके अनाज, दूध, दालें, सब्जियां, सब कुछ इसमें आ गया, बटर, घी, एवरीथिंग। तो सात्विक फूड ये है। देन आपका आता है राजसिक फूड। राजसिक फूड वो है जो कि हम बहुत ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मसाले वाला खाना जो हम खाते हैं, जो कि खाकर अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं बाजार का, ठीक है, अच्छा लगता है सबको कभी ना कभी, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप खा लेते हैं तो यू फील रेस्टलेस, ठीक है। तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा सारा खाना भी खाते हैं, देन ऑल्सो इट इज अ राजसिक फूड। राजसिक मतलब कि बहुत सारा खाना एकदम प्लेट भर के आपने खाया है, और इसमें आपके जैसे कॉफी, टी, जो भी आपके मूड को ट्रिगर करते हैं या फिर तेज मसाले हैं, वो सब आपके राजसिक फूड में आते हैं। देन है आपका तामसिक फूड। तामसिक मतलब कि जो कि बासी हो सकता है, या बहुत ज्यादा पका हुआ हो सकता है, फर्मेंटेड, या जैसे कि यहाँ पे नॉन वेज वगैरह है वो हो सकता है इसमें। तो ये हमारे ना तो माइंड को कुछ आराम दे रहा है, ना ही बॉडी को कोई बेनिफिट, कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि ये हमारे को वीक कर रहा है। वीक कैसे कर रहा है? कि जब हम ऐसा खाना खाते हैं, बासी खाना खा रहे हैं, या ओवर राइप खा रहे हैं, या नॉन वेज खा रहे हैं, तो उससे क्या है, हम मतलब नींद जैसे आ जाती है। जैसे कई बार हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हम ज्यादा एनर्जेटिक होने की बजाय और थका हुआ महसूस करते हैं कि सो जाओ, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, आपकी रीजनिंग भी कम हो जाती है,
और आपकी एक्टिविटी भी कम हो रही है। तो ओवर ईटिंग इज ऑल्सो तामसिक। ओवर ईटिंग करना, बासी खाना खाना, ज़्यादा खाना खाना, नॉन वेज, एल्कोहल, मसाले, तंबाकू, ये सब चीज़ें इसमें ही आती है। और इससे होगा क्या, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपका माइंड में नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं एंड यू फील एंग्री और मोर ग्रीडी। देखा जाए इनमें 3 गुण है। सत्वा मीन्स जब आप सात्विक खाना खाते हो यू फील बैलेंस्ड, हार्मोनिक, पॉजिटिव, पीसफुल, light. You feel light, you are creative, you want to do something, you use your intelligence. But when you eat lots of food and you feel like rajasic food you are eating, then आपके अंदर की बहुत ज़्यादा excited रहना, passionate रहना, बहुत ज़्यादा फालतू की desires आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने खाया खाना तो आपके अंदर उसी तरह से desires भी ज़्यादा होने लग जाती हैं। एंड एंग्जाइटी होना, तो ज़्यादा डिजायर होना इज ऑल्सो डेंजरस फॉर यू। देन तामसिक से तो नेगेटिविटी और डिप्रेशन आना है, क्योंकि आपने ऐसा खाना खाया उसके बाद आप यू वांट टू स्लीप, यू डोंट वांट टू रीजन, यू डोंट वांट टू फाइट फॉर एनीथिंग, you just want to relax. That is also not good for you. So what is the gist of it, that you need to know कि क्या खाना है, क्योंकि जो आप खाते हैं आप वही बनते हैं, right? So select intelligently and eat right to attain holistic health. So that's it. Thank you so much for listening so patiently, and do keep doing yoga and attain holistic health. Thank you so much, ma'am, for sharing such an informative lecture and for sparing your valuable time for us. आपने हमारे बच्चों को जो कुछ भी बताया, I hope वो उसे याद रखेंगे और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करेंगे उस फूड के बारे में जो भी आपने समझाया, क्योंकि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और आजकल NSS के द्वारा कंडक्ट की गई योगा की वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज आज उन्होंने लिया है। और मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि मोनिका मैम जो है वो जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो एक तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों के स्किल अपग्रेडेशन की। सो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम थोड़ा सा प्लीज़ आप उस ट्रेनिंग के बारे में बच्चों को बताएं और हमें गाइड कीजिए उसके रिगार्डिंग, प्लीज़ मैम। Okay, yes, Shrestha, let me share my slides for that. Sure, ma'am. Is it visible? जी मैम जी। Yeah, so we are providing training on holistic approach towards health. जो holistic health achieve करनी है, अब सिर्फ ये बात कर लेना कि हमें holistic health achieve करनी है, that is not sufficient. वो कैसे अचीव करनी है, तो खाने के बारे में हमने बताया है, बट स्टिल वी नीड टू नो अ लॉट अबाउट इट। तो वो हम एक ट्रेनिंग कराते हैं, दैट कैन बी 30 आवर्स ट्रेनिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो अबाउट होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग, हाउ यू कैन अटेन हेल्दी लिविंग। देन बेसिक न्यूट्रिशन, बहुत सारी मतलब जो बच्चे सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं ओनली दे नो अबाउट न्यूट्रिशन, बेसिकली अदर स्टूडेंट्स डोंट नो मच अबाउट इट, तो उसके लिए उनको बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज देना। फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हाउ कैन दे मैनेज देयर लाइफस्टाइल ताकि वो बीमार हो ही ना, राइट। और फिर फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है उस लाइफस्टाइल डिजीजेस में या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, एंड स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है क्योंकि स्ट्रेस समहाउ है ही बच्चों के पास, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए एम्पावर करना, और उनको प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ ब्लॉग्स, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट मेकिंग, रेसिपी मेकिंग, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में सिखाना। इसका करिकुलम जो है बेसिक न्यूट्रिशन जो है 10 आवर्स का रखा है, देन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दैट इज फॉर 6 आवर्स, फिजिकल एंड इमोशनल मैनेजमेंट 4 आवर्स, एंड देन क्रिएटिव लर्निंग इज फॉर 10 आवर्स। बेसिक न्यूट्रिशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक न्यूट्रिशन, हेल्दी मील, फूड ग्रुप्स, न्यूट्रिएंट्स, and first 1000 days. What are these first 1000 days when a mother conceives to the second birthday of the child?
तो why it is important to take care of mother and child at that time कि first 1000 days क्या हैं, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करना, देन अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो छोटा बच्चा है जिसको पता नहीं है उसे क्या खाना है क्या नहीं, तो हाउ यू कैन बी नॉलेजेबल अबाउट इट, कि आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, तो वो इसमें बताया जाता है। देन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन फॉर टीन्स, टीनेज के न्यूट्रिशन के बारे में, उनके वेट मैनेजमेंट के बारे में, एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, क्योंकि देखा गया ज़्यादातर गर्ल्स जो कॉलेज जाती हैं तो वो गर्ल्स या बॉयज एवरीबडी दे मिस ब्रेकफास्ट, so why it is important to know about breakfast. Then few diseases like PCOS management, because it is affecting more of teenagers and girls, so we are going to talk about it as well. And diabetes, a very prevalent disease, so everybody should be aware of it, how it happens and how we can prevent it. Then yoga, how yoga is important to us and how we can manage stress. The customer relationship management will be taught to you, how you can manage your customers, and recipes will be taught, different recipes, healthy recipes, and then product management will be there, product के standardization का भी बताया जाएगा. Blog writing will be told to you, and every training has some meaning for it, मतलब training क्यों की जाती है, ताकि हम सक्सेसफुल हो सके. So it is not only about your career success in career, it's about your physical health and well-being. So you can get it involved, like this is a certificate course, you can attach with your CV and you can get good opportunity in job as well. So it is me who is going to take these classes. So I wish you all happy learning. Who all wants to enroll can talk to me about it. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, इट सीम सो इंटरेस्टिंग। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और प्रिंसिपल मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह की ट्रेनिंग जो है हमारे बच्चों के लिए ज़रूर कंडक्ट करवाई जाए, और क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री ही काफ़ी नहीं होती है अब आज के टाइम में, उनको साथ के साथ कुछ स्किल अपग्रेडेशन के सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी स्किल्स भी सीखनी चाहिए बच्चों को जो उनको आगे जॉब प्रोफाइल में हेल्प कर सके और आगे के लिए भी हेल्प कर सके इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच मैम। और इनफॉर्मली कहूँ तो आज फिर से ऐसा लगा कि 13-14 साल बाद मैं फिर से क्लास में बैठी हूँ और मैम का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच मैम। I also want to express my sincere thanks to our principal ma'am, Dr. Meenakshi. Thank you so much ma'am for your continuous support, your guidance, your motivation and for everything. आपके support के बिना nothing has been possible. और साथ ही साथ अपने साथ जुड़े हुए हमारे कॉलेज के सभी साथियों का, डॉक्टर वीरेंद्र कौर मैम, डॉक्टर पूनम बागी मैम, सीमा मैम, पूजा मैम और विनय सर, और इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे साथ जुड़े रहे। और स्पेशल थैंक्स टू कोमल गर्ग मैम एंड पूजा मैम, प्रीति मैम फॉर योर टेक्निकल सपोर्ट। थैंक यू सो मच मैम। कॉलेज के अलावा भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े रहे, दूसरे कॉलेजेस से कुछ बच्चे बाहर के भी जुड़े रहे। सो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और पेशेंटली आपने लेक्चर को सुना। सो थैंक यू सो मच मैम। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है मैम से, सो प्लीज़ बच्चों आगे आओ और आप कुछ भी मैम से पूछ सकते हो, मैम डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। कोई बच्चा अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो डाइट के बारे में, योगा के बारे में या कुछ भी। आई थिंक कोई बच्चा नहीं पूछना चाह रहा मैम, बच्चों को सब समझ में आ गया शायद। हाँ, यही हुआ, या तो समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं। नहीं, डेफिनेटली मैम आपने इतने अच्छे से समझाया, मैम मेरा एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जरूर मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडिबल नहीं है मीनाक्षी मैम। आई थिंक नेटवर्क का आज थोड़ा सा इशू है मैम के साइड पर। मीनाक्षी मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही। Excuse me, ma'am. Your lecture is very हाँ जी। informative. Dr. Poonam Bagi, I want to add something, ma'am. मैम आपने जो बताया त्रिगुणास की तो आपने बात करी, रजस तमस एंड सत्व की, क्या कोई त्रिदोष का भी यहाँ पर मैम आप बताओगे, हमें बता पाओगे कि इसमें भी जो डाइट वगैरह में है हमारा त्रिदोष का भी कोई रोल होता है? क्योंकि ये गुण तो हमने गुण और दोष दोनों का ही हमारी बॉडी पे आई थिंक इन्फ्लुएंस होता है, तो डाइट में भी हो सकता है मैम? मुझे त्रिदोष के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप बताएंगे तो आई कैन गाइड यू। आई थिंक एक्चुअली त्रिदोष होते हैं मैम, वात पित्त एंड कफ। 3 दोष होते हैं जो कि हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फ्लुएंस वो करते हैं, पूरा रोल होता है इनका। वात पित्त इन्हीं के बेस पे अगर जैसे हम आई थिंक जैसे आपने बताया सात्विक डाइट लेंगे, तामसिक और नहीं, नाउ आई गॉट इट। हाँ जी। अगर डाइट लेंगे तो आई थिंक वो पित्त को हमारे एग्रेवेट करेगा और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालेगा। बिल्कुल मैम, वात पित्त जो ये वायु का और आपके बॉडी के अंदर जो पित्त हो जाती है, तो उसका राजसिक, तामसिक और जो सात्विक फूड है उसके साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है ही। जब भी आप बासी खाना खाते हैं तभी आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बासी खाना खाना है, ज़्यादा मसाले वाला खाना खाना है, या ज़्यादा तला हुआ खाना खाना, राइट। और अगर आप फ्रेश फूड खाते हैं, फ्रेश हर रोज का बना हुआ दाल रोटी, सिंपल चावल और दालें, सब्जियां, सैलड, फ्रूट, तो इससे कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। और वो भी आप टाइम से, अगर कितना खाना है क्वांटिटी भी उसकी उसी हिसाब से लें। अगर बहुत ज़्यादा वो भी खाएंगे तो उससे भी आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए जो हमारा आयुर्वेदा है वो ये बताता है कि हमें सादा खाना खाना है, कम मसाले वाला खाना खाना है और किस कॉम्बिनेशन में खाना खाना है, तभी ताकि हमारी जो डाइजेशन है वो सही रहे और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, वात पित्त वाली, की हमें बॉडी में गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है या इंडाइजेशन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ईटिंग दैट सात्विक फूड। थैंक यू सो मच पूनम मैम। पूनम मैम, मैं बताना चाहूँगी मोनिका मैम को, पूनम मैम हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हेड हैं, डॉक्टर पूनम बागी मैम। सो आई थिंक मुझे लगता है ये जो हमारा 1 साल निकला है मैम कोरोना का, उसमें ये सात्विक भोजन का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है ना। लोगों ने बहुत ज़्यादा शुद्ध चीज़ों को और जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करें, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि पिछले 1 साल में ये सब चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, नो डाउट। और लॉकडाउन के चलते बाहर खाना पीना और ये जो तामसिक और राजसिक फूड था वो आई थिंक बिल्कुल बंद हो गया। तो बहुत अच्छा था। श्रेष्ठा मैम, हाँ, आई एम ऑडिबल नाउ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, हाँ जी, सॉरी मैम, बीच में मेरा थोड़ा सा कनेक्शन भी चला गया था, तो हो सकता है शायद आपने ये कवर कर दिया होगा। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि हम लोगों को मिथ रहता है कि जिस पीरियड्स के दौरान हमें योगा नहीं करनी चाहिए या हमें कुछ स्पेशल टाइप का फूड जो है वो लेना चाहिए। तो क्या खाने का और योगा करना या ना करना जो है वो इन दिनों में हमें अवॉइड करना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जो योगा करते हैं ना, वो जी। 365 के 365 डेज करते हैं। मतलब हम लोग तो फिर भी किसी ना किसी दिन छुट्टी कर लेते हैं कि चलो आज उठने का मन नहीं है या कुछ है, बट दे डू इट रेगुलरली। और जो रेगुलरली करते हैं ना, इससे जितनी भी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितनी लेडीज की पीसीओएस वगैरह है या यूट्रस की प्रॉब्लम्स है, ऑल दीज गेट रिजॉल्व। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ड्यूरिंग दैट नहीं करना है, बट यस, अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, कुछ ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो इन दैट केस यू कैन अवॉइड, बट यू कैन डू सिंपल आसन्स। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले आसन नहीं किए जाए, सिंपल मेडिटेशन किए जाए। इसमें तो मतलब योगा ही एक ऐसा
साधना है जिसमें कि इवन योग निद्रा भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे जाती है, शवासन भी कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा ही देगा। आपको मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज्यादा उसमें रिग्रेस वाला कुछ करना है, वेरी स्लोली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मैम कि उस टाइम में नहीं कर सकते हैं। और रही डाइट की बात, तो डाइट का भी एज सच कोई साइंस ये नहीं कहते कि उस टाइम में आपको नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इट्स ओनली अबाउट आवर विलिंगनेस कि मतलब उस टाइम पे आपकी क्या इच्छा हो रही है। जैसे कि क्योंकि क्रैम्प्स हो रहे हैं मान लो उस टाइम में, या स्टमक पेन हो रहा है, तो यू फील लाइक ड्रिंकिंग हॉट मिल्क, हॉट सूप या चाय, है ना, तो या फिर गरम हलवा, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि आपको एनर्जी दे, आपको पेट को या बॉडी को स्ट्रेंथ दे। तो उसके लिए, और खुद ही कई बार इच्छा नहीं होती कि हम ठंडा कुछ खाएं, आइसक्रीम खाएं, और ये सब मिथ है कि उस टाइम में पिकल नहीं खाना है, उस टाइम में खट्टा नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ नॉर्मल खाना खाएंगे तो यू विल फील रिलैक्स्ड। और क्या होता है, एक तो वैसे ही अगर किसी बच्चे की बात करें तो वो ऑलरेडी वैसे ही इरिटेटेड होता है उस टाइम पर, है ना, और फिर आप कह दोगे कि जी अचार नहीं खाना है तुम्हें, तुम्हें दही नहीं खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तो ऑलरेडी वो इतना इरिटेटेड है, तो हम बहुत सारी चीजें वो वैसे उसका खाने का मन नहीं कर रहा है, और जो खाने का मन कर रहा है वो हम दे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए इस टाइम में। जो बच्चा खाना चाहता है उसे देना चाहिए, और थोड़ा उसको बल्कि पैम्परिंग करनी चाहिए कि ताकि वो खाए। ये नहीं कि आपको ये नहीं खाना है, उससे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है, तो दैट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू पास दैट टाइम। तो ये ऐसा नहीं है कोई योगा नहीं कर सकते हैं या कोई स्पेशल डाइट खानी है, कुछ भी आप घर का बना हुआ हेल्दी खाना खा सकते हैं, फ्रेश खाना। थैंक यू सो मच मैम। कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है मैम से, कोई भी प्रॉब्लम बच्चों आपने डिस्कस करनी है किसी भी तरह की, सो आप प्लीज पूछ सकते हैं मैम से। मैम स्टूडेंट्स कई बार हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने में, तो आप उनसे चैट बॉक्स में ले सकते हो क्वेश्चन। हाँ बच्चों, आप प्लीज अगर कोई क्वेरी है आप चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए। मैम एक बच्चे का आया है क्वेरी, वैक्सीन के बाद सही डाइट क्या रहती है। आई थिंक ये कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं बच्चे, कि रिसेंटली वही ज्यादा बच्चों को पता है आजकल। मानसी सैनी ने पूछा है ये, मैम प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली वैक्सीन हम क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। वैक्सीन हम ले रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है, कोई वायरस अटैक होने के टाइम पर वायरस का अटैक ना हो, हमारी बॉडी उसके लिए रेडी हो जाए, इसी के लिए हम वैक्सीन देते हैं। कोई भी वैक्सीन हो, ये तो अभी चलो कोरोना की वैक्सीन है, अदरवाइज भी बच्चा पैदा होता है तब से हम वैक्सीन देना शुरू कर देते हैं उसको। फर्स्ट वैक्सीन BCG से स्टार्ट करते हैं, देन सो मैनी वैक्सीन आर गिवन। क्यों दी जाती है वैक्सीन? ताकि बॉडी जो है उस डिजीज के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो जाए, राइट। तो बॉडी के अंदर आप ये साइंस समझने की कोशिश करिए कि बॉडी में हमारे ब्लड है जो कि फाइटर का काम करता है, और बॉडी उसमें एंटीबॉडीज जो है हमारे हमें प्रोटेक्ट करती है हर डिजीज से। तो वो एंटीबॉडीज बनने के लिए बॉडी हेल्दी होना जरूरी है। अब ये नहीं कि हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं और खाना भी नहीं खा रहा है, तो मेडिसिन भी किस पर रिएक्ट करेगी, राइट। तो एंटीबॉडीज के लिए बॉडी हेल्दी हो, उसके लिए प्रोटीन्स और खूब सारा लिक्विड, क्योंकि इसमें जो वैक्सीन, ये वाली वैक्सीन है, इसमें लिक्विड इसलिए ज़्यादा भी बोला जाता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म। तो ब्लड की ज़्यादा बने, ब्लड ज़्यादा बने और ज़्यादा एंटीबॉडीज बने, ताकि हमारी बॉडी फाइट करने के लिए रेडी रहे। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी हो गया, आपका कोकोनट वाटर हो गया, लस्सी, छाछ, एनीथिंग। ये नहीं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ ये नहीं है कि इसमें नहीं खाना है, सब हेल्दी खाना खाना है, ज़्यादा लिक्विड लेना है, ज़्यादा प्रोटीन्स लेने हैं, ताकि एंटीबॉडीज को बनने के लिए पूरा कच्चा मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल मिलता रहे। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, राइट। तो इसके लिए प्रोटीन्स और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें उस टाइम में, ठीक है। और फिर बार बार मैं यही कहूँगी, जो आपका खाने का मन करता है वो खाने को दें। ये नहीं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, जो भी खाने का मन करता है वो खाने को बना के दें। जी थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक बच्चों को जवाब मिला होगा जो वो पूछना चाहते हैं।
और थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारे क्वेरीज को भी लिया और समझाया, बच्चों का मैसेज आ गया। थैंक यू सो मच मैम। और विद परमिशन ऑफ प्रिंसिपल मैम, आई थिंक अब हम वाइंड अप करें, अगर प्रिंसिपल मैम की परमिशन हो तो। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसीड करें। Thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time. And I again want to express my sincere thanks to Principal ma'am, to our colleagues, जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, फिर से आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। और आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाई हूँ या मैं छूट कर गया हो किसी का नाम। थैंक यू सो मच। और बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, आपने पेशेंटली लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना, और इसका सुनने का फायदा तभी है जब आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी देंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम, श्रेष्ठा एंड प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर।